Hello dear students, myself Dr. Nishtha Shukla, HOD RKG Educational College, Omek City, Lucknow. Today we shall know about learning. This topic is of B.Ed Semester 1, Paper 2, the psychological perspective of education. Considering that the pupil teachers watching this video can be of English medium as well as Hindi medium, I'll speak bilingual. In this video, we'll be covering learning, its meaning, concept, नेचर एंड डोमेन्स अर्थात अधिगम, उसकी प्रकृति तथा उसके डोमेन्स। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। इन कॉमन parlance, the word learning carries at least two meanings. There is a general one of some kind of change, often in knowledge and also in behavior. However, learning cannot be defined merely in terms of changes in behavior, but there is also a more intense sense of verb to learn, meaning to memorize, to learn by heart. Few people are of the view that learning is change. Not all change is learning. What we usually mean by learning are those more or less permanent changes and reinforcements brought about voluntarily in one's pattern of acting, thinking or feeling. हम आमतौर पर सीखने से जो मतलब रखते हैं वे हैं स्थायी परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण, जो किसी के अभिनय, सोच या महसूस करने के तरीके में स्वेच्छा से आते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन इन वन ऑफ हिज कोट्स सेड, "Once you stop learning, you start dying." Now students, why is it important to know about the meaning of learning in education? ये अधिगम टॉपिक क्यों है बीएड के सिलेबस में? इसका क्या औचित्य है? It is important for a teacher to know about learning, its concept and meaning, because teaching is not complete without learning. Both teaching and learning complement each other. A teacher must know about how learners learn, and this is the reason teachers should have knowledge about concept and meaning of learning in education. एक शिक्षक को ये जानना चाहिए कि शिक्षार्थी कैसे सीखते हैं, और यही कारण है कि शिक्षक शिक्षा में अवधारणाओं और सीखने के अर्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। Okay, tell me one thing. What do you do when studying for an exam? Do you read your class notes and textbooks? Hopefully not for the first time. Do you try to find a quiet place without distraction? The choices you make reveal your theory of learning. But there is no reason for you to limit yourself to your own intuitions. There is a vast and vibrant science of learning in which researchers from psychology, education and neuroscience study basic principles of learning and memory. In fact, learning is a much broader domain than you might think. The word learning means you think of study and classroom related activities, but learning is not limited to school. It is happening in our day-to-day life. The learning may be deliberate or unintentional, for better or for worse, correct or incorrect, and conscious or unconscious. अधिगम हर प्रकार से हो सकता है. Every stage in our life is to be molded to bring modification in our knowledge and behavior. A baby tries to make know the mother when he or she feels hungry and gradually learns to cry whenever the baby feels uncomfortable in any situation in order to get care from the mother. Changes in our behavior are brought by the experiences that we gained through the interaction with the environment and its people. अधिगम का आधार होता है अनुभव। जब हम अपने आसपास के environment में और लोगों के कांटेक्ट में आकर अनुभव ग्रहण करते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे ही अधिगम कहा जाता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस विच ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉड्यूलिंग द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो एक बार फिर से जानते हैं कि हम लोग आज इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। लर्निंग यानी अधिगम, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड डोमेन्स। सबसे पहले एक नजर डालते हैं डेफिनेशंस पे। हेनरी पी स्मिथ के अनुसार लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना नए व्यवहार का अधिग्रहण या अनुभव के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार को मजबूत या कमजोर करना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार learning is the acquisition of knowledge, habits and attitudes. It involves new ways of doing things
and it operates in an individual's attempt to overcome obstacles or to readjust to new situations. It represents progressive change in behavior. सीखना ज्ञान, आदतों और दृष्टिकोण का अधिग्रहण है। इसमें चीजों को करने के नए तरीके शामिल हैं और यह बाधाओं को दूर करने के लिए या नई स्थितियों के लिए पुनरावृत्ति करने के लिए एक व्यक्ति के प्रयासों में संचालित होता है। यह व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। Different psychologists have defined learning in their own way. To sum up, we can say that learning means change in behavior that occurs as a result of experience. Learning can result from both vicarious and direct experiences. सीखने का परिणाम विचित्र और प्रत्यक्ष दोनों तरह के अनुभव हो सकते हैं। इस प्रकार लर्निंग का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। अब आते हैं अधिगम की प्रकृति पे। अधिगम एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस। इट स्टार्ट्स विद परसीविंग यानी ग्रहण करना। लर्न करने के लिए कुछ इनपुट या आइडिया आता है। देन कम्स डिसाइडिंग अर्थात ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है कि किस प्रकार इनपुट को एक्ट करें यानी सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ एक्ट में परिवर्तित करें। नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिंग मीनिंग आउटपुट ऑफ ऑलरेडी लर्न्ड थिंग्स। आफ्टर आउटपुट कम्स फीडबैक। इट कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। In case the response is positive, then the cycle starts again, and if negative, then it stops. Thus, we see that learning is a process. Next point says, learning is universal. सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह हर जगह हो सकता है। सीखना सभी जीवित प्राणियों के लिए एक प्रक्रिया है। सभी संस्कृतियों में मानव सीखता है। Learning is continuous. As already discussed above, it is the process which starts from birth and continues till death. Goal-driven or goal-oriented means setting targets and objectives that will make progress throughout your life much smoother. जब भी कोई डेडलाइन मिलती है तो एक लक्ष्य चलित व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है। जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करने की इच्छा होनी चाहिए। Practice greatly increases the likelihood that students will permanently remember new information. Practice is the act of rehearsing a behavior over and over or engaging in an activity again and again for the purpose of improving or mastering it. As the phrase says, practice makes the man perfect. जैसे एग्जाम्स के पहले हम लोग राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि एग्जाम में फटाफट टाइम से पेपर कंप्लीट कर सकें। अधिगम अनुभव पर भी आधारित होता है। जैसे बीएड में हम लोग स्कूल में जाके प्रैक्टिस इन टीचिंग करते हैं और फिर लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करते हैं ताकि हमें स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस हो सके। इंटर्नशिप के अनुभव के आधार पर हम एक सफल टीचर बनने के एक कदम और नजदीक पहुंच जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रधान प्रतिभाएं हो सकती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती हैं, जैसे दृश्य संबंधी, शाब्दिक, तार्किक, etc. That is why it is said that learning is multidimensional. Learning is individual. Individual learning or individualized instruction is a method of teaching in which content, instructional technology, and pace of learning are based upon the abilities and interest of each learner. व्यक्तिगत शिक्षण या व्यक्तिगत निर्देश शिक्षण की एक विधि है जिसमें सामग्री, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी और सीखने की गति प्रत्येक सीखने वाले की क्षमताओं और रुचि पर आधारित होती है। लर्निंग इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल। यदि आपको साइकिल चलाना आती है
तो बाइक चलाना आसान हो जाता है क्योंकि आपको बैलेंसिंग आ जाती है और साथ में रोड सेंस भी आ जाता है। लर्निंग से हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन आता है वो रिलेटिवली परमानेंट होता है। यदि साइकिल सीखने का ही एग्जाम्पल लें तो वंस यू हैव लर्नड हाउ टू राइड अ साइकिल देन यू कैन नॉट फॉरगेट इट। Even if you don't ride a cycle for a couple of years, still you will never forget riding it. Thus, learning is relatively a permanent change. Learning helps the individual to adjust himself adequately to new situations. Most learning in children consists of modifying, adopting, and developing their original nature. In later life, the individual acquire new forms of behavior. The only way to study learning is through some observable behavior. Actually, we cannot observe learning. We see only what precedes, that is, performance. The performance itself and the consequences of performance. So now we shall move on the essentials of learning. Let's know about the essentials of learning. Learning takes place because of response to some stimulus. Learning requires motive, an attractive goal and barrier. किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उस अधिगम को करने के लिए कोई प्रेरणा हो। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपका मोटिव है लर्निंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना। लर्निंग के बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको क्या फायदा होगा? बीएड कोर्स करना है ताकि एक अच्छी जॉब मिल सके। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी लर्निंग विदाउट गोल या बिना लक्ष्य के नहीं होती। इसके साथ ही जरूरी है कि किसी भी प्रकार की बाधा को पार करके लर्निंग की जाए। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने अनुभवों को एक बार रिवाइज करेंगे तो पाएंगे कि जिन चीज़ों को सीखने के लिए हमको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा वो लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट होती है। अब और आगे बढ़ते हैं और जाते हैं हायरार्की ऑफ लर्निंग की तरफ। सबसे पहले पायदान पे है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग इज a complex process involving the coordinated contractions of muscles due to the transmission of impulses sent from motor cortex to its motor units. Walking is the best example of motor learning. 1 साल का infant 2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, उठता है और फिर चलता है। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने मोटर्स पे कंट्रोल करना सीखता है और आराम से बिना गिरे चलने लगता है। इसके बाद आता है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ वर्बल मटीरियल्स। At its most elementary level, it can be defined as process of building associations between a stimulus and a response, with both of them being verbal, अर्थात शब्दों का प्रयोग आना। जब बच्चा छोटा होता है तब वो बोले बिना साइन लैंग्वेज में अपनी नेसेसिटीज बताता है, किंतु जब शब्दों का प्रयोग शुरू कर देता है तो शब्द द्वारा अपने ज़रूरतों को बताता है। उम्र के साथ साथ वर्बल लर्निंग इम्प्रूव होती जाती है। किसी प्रकार अपनी बात को समझाना हो, अपना पक्ष रखना हो, अपने व्यूज शेयर करने हो, ये सब हम वर्बल लर्निंग के अंडर में ही करते हैं। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग अर्थात संकल्पना अधिगम। कई वस्तुओं को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर एग्जाम्पल ले मैथमेटिक्स का तो एडिशन का कॉन्सेप्ट, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रकार से ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी विभेदीकरण अधिगम। जब हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तब हम उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में विभेद कर सकेंगे। जैसे राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, खारिफ क्रॉप्स कौन सी हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंशिएशन के बाद आता है प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को सीखना। जैसे व्याकरण के सिद्धांत,
लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ मोशन, एटसेट्रा। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज ऑलमोस्ट ऑन द टॉप ऑफ लर्निंग। हम अधिगम आखिर क्यों करते हैं? हम अधिगम करते हैं ताकि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकें। मोटर लर्निंग से लेकर लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल तक हम धीरे धीरे अधिगम की तरफ बढ़ते हैं और हमारा मेन लक्ष्य होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी समस्या का समाधान ढूंढना। नाउ द टॉप मोस्ट लर्निंग इज एटीट्यूड लर्निंग। Your learning attitude determines how you perceive things, what you will become as a person. तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट तरीकों से हम लर्निंग करते हैं, मोटर लर्निंग से लेकर एटीट्यूड लर्निंग तक। मनोवैज्ञानिक निश्चित तरीके से चीजों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रकृति के रूप में व्यवहार को परिभाषित करते हैं। इसमें लोगों के मुद्दों, वस्तुओं या घटनाओं का मूल्यांकन शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। पहला डोमेन ऑफ लर्निंग आता है कॉग्निटिव। ये हमारे ब्रेन यानी बुद्धि से संबंधित होता है। फिर आता है साइकोमोटर। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथों से संबंधित होता है, हमारे मोटर्स से संबंधित होता है, हमारे सेंस ऑर्गन से संबंधित होता है। इसके बाद आता है अफेक्टिव, जो हमारे हृदय से संबंधित होता है। अब आप देख सकते हैं कॉग्निटिव यानी बुद्धि, साइकोमोटर यानी हाथ पैर, अफेक्टिव यानी हृदय। अब हम एक एक करके इसको विस्तार से पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डोमेन मतलब रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स। इसमें पहले नंबर पे आता है नॉलेज यानी ज्ञान। दूसरे नंबर पर आता है कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध, एप्लीकेशन यानी प्रयोग, एनालिसिस यानी विश्लेषण, सिंथेसिस यानी संश्लेषण और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। स्टूडेंट्स, एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था लॉरेन एंडरसन, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम एंड डेविड कॉटफोल, revisited the cognitive domain in mid-90s and made some changes. जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें इन्होंने चेंज कर दिया रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग को, एज यू कैन सी इन द इमेज। सीक्वेंस भी थोड़ा सा बदल दिया, इवैल्यूएटिंग नीचे आ गया और लास्ट में आया क्रिएटिंग। अब बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। कॉग्निटिव डोमेन के डिटेल के बारे में चलते हैं। As you can see in the image, cognitive domain is concerned with the mind, with the brain. So in new cognitive domain, we can see as in the table, category, explanation, keywords, activities and examples. इसमें सबसे पहले आता है remembering यानी याद करना, recall और retrieve previous learned information. जब हम किसी पुराने सीखी हुई चीज को, कॉन्सेप्ट को, वर्ड को रिकॉल करते हैं तो उसको रिमेम्बरिंग कहते हैं। इसके कीवर्ड्स हैं डिफाइन, डिस्क्राइब, लेवल, मैच, नेम, रिकवरी एटसेट्रा। इसमें रोट लर्निंग होती है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जब कोई किसी सेफ्टी रूल्स की बात कर लीजिए, रोड सेफ्टी रूल्स को आदमी एज इट इज रिकॉल करके बता दे कि क्या है रोड सेफ्टी रूल्स, तो वो सब रिमेम्बरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझाना, बोध, कॉम्प्रिहेंडिंग द मीनिंग, ट्रांसलेशन, इंटरपोलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉब्लम्स। स्टेट प्रॉब्लम इन योर ओन वर्ड्स। जब हम किसी समस्या को अपने शब्दों में बोल पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसी को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। इसके कीवर्ड्स हैं कॉम्प्रिहेंड, कन्वर्ट, डिस्टिंग्विशेस, एक्सप्लेन्स, जनरलाइज। इसमें एक्टिविटीज होती हैं जैसे नोट्स लेना, स्टोरी सुनाना या इंटरनेट में कुछ सर्च करना।
जब आप गूगल में जाके कोई मैटर सर्च करते हैं तो आपको अपने मैटर से संबंधित बहुत सारी वेबसाइट्स खुलकर आ जाती हैं। अपने मतलब की चीज डिफरेंट वेबसाइट्स से निकालना ही इसके अंडर में आता है। उसी को हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अप्लाइंग की। अप्लाइंग मीन्स what was learned in the classroom into novel situation in workplace। जो भी आपने क्लासरूम में समझा है, जाना है, उसको अपनी जरूरत की जगह पर अप्लाई करना ही अप्लाइंग कहलाता है। इसके कीवर्ड्स हैं अप्लाई, चेंजेस, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स। एक्टिविटीज जैसे किसी प्रोसेस को क्रिएट करना, कोई ब्लॉग लिखना या प्रैक्टिस करना। जब हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको इवैल्यूएट करना है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाना है और उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं, तो वो नॉलेज को अप्लाई करना कहेंगे। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग या एनालिसिस। एनालिसिस करना यानी विश्लेषण करना। दो फैक्ट्स के बीच में जब हम डिफरेंसेस करना जान जाते हैं तो उसको एनालिसिस कहते हैं। इसके कीवर्ड्स हैं कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर, डिफरेंशिएट, डिस्क्राइब। एक्टिविटीज में आ जाता है डिबेट करना। जब हम क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, वो सब कुछ एनालिसिस में आता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए किसी जॉब के लिए आपको कैंडिडेट्स के लिए को शॉर्टलिस्ट करना है, तो उनकी सीवी के आधार पर उनके जॉब को दिमाग में रखते हुए जब आप उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यस, एनालाइज करना। देन कम्स द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएटिंग। Evaluating, it is making judgments about the values or ideas or material. इसके keywords हैं compare, conclude, contrast, criticize, describe। जब किसी चीज का सर्वे करते हैं या ब्लॉग करते हैं तो उसको हम इवेल्युएट करना कहते हैं। जैसे आपने प्रीवियस में एनालिसिस में देखा था कि आपने कैंडिडेट्स के सीवी के आधार पर उनको शॉर्टलिस्ट किया। अब इवेल्युएट करना उसको कहेंगे जब उनके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आप फाइनली सेलेक्ट कर लेते हो उनकी कॉम्पिटेंसी और उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। जब हायर कर लेते हो तो उसको कहेंगे एनालाइज करना। फिर आता है क्रिएटिंग। Put parts together to form a whole with emphasis on creating a new meaning or structure is called creating। डिफरेंट पार्ट्स में हम लर्निंग करते हैं और लर्निंग करने के बाद जब हम कुछ नया बना देते हैं, कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिएटिंग। इसके कीवर्ड्स हैं कंपोजेस, कंपाइल, कंबाइन, क्रिएट। जैसे आप कोई नया ऐसे लिख दो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, या जो कुछ भी आपने पढ़ा है या आपने एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे अगर आप ऐसे लिखते हो तो उसको कहा जाएगा क्रिएटिंग। अब आते हैं साइकोमोटर के डोमेन पे। द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट and use of motor skills. These skills require practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedure or techniques in execution. Motor learning development is organized pattern of muscular activities. It is guided by signals from the environment. For example, throwing a ball, typing, playing any game. ये सारी चीजें हमारे मोटर स्किल्स में आते हैं, जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। आप फिगर में देख पा रहे होंगे किस तरह से फुटबॉल खेलना, साइकिल खेलना, स्विमिंग करना, और ये सारी चीजें आती हैं हमारे साइकोमोटर के डोमेन पे। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है परसेप्शन यानी अनुभूति। परसेप्शन इज द एबिलिटी टू यूज सेंस क्यूज टू गाइड मोटर एक्टिविटीज। द ranges फ्रॉम सेंसरी स्टिमुलेशन थ्रू सिलेक्शन टू ट्रांजिशन। मतलब जब हम अपने सेंसर्स के को गाइड करते हुए, सेंसर्स से गाइड होते हुए कोई भी मोटर एक्टिविटी करते हैं तो उसको अनुभूति कहते हैं। कीवर्ड्स हैं डिस्क्राइब, डिटेक्ट, डिफरेंशिएट। जैसे जब कोई क्रिकेट खेलता है और उसमें बॉल की तरफ जाता है और ये अंदाज लगा लेता है कि इसी तरफ बॉल गिरेगी तो मैं भाग के उस पोजीशन पे आ जाऊं ताकि उसको प्रॉपरली कैच कर सकूं, तो इसी एक्टिविटी को हम परसेप्शन कहते हैं।
Next comes set. Set means readiness to act. It includes mental, physical, and emotional. These three sets are dispositions that determine the person's response to different situations. कोई व्यक्ति एक काम करने के लिए कितना ज्यादा रेडी है, कितना मोटिवेटेड है, उसी को सेट कहते हैं. इसके कीवर्ड्स हैं बिगिन, डिस्प्लेस, एक्सप्लेन, स्मूथ. एग्जाम्पल, जब कोई किसी नई प्रोसेस को, कोई नई चीज को सीखने के लिए अपनी डिजायर, अपनी इच्छा शो करता है, तो उसी को सेट कहते हैं. फिर आता है गाइडेड रिस्पॉन्स. It includes imitation and trial and error. Adequacy of performance is achieved by practicing. Keywords are pace, traces, follows, reacts. मैथमेटिक्स में इसका एग्जाम्पल हम लोग मैथमेटिक्स से लेते हैं. टीचर आपको एक सम, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता है एक एग्जाम्पल के तौर पर, और फिर फिगर्स चेंज करके सेम एग्जाम्पल आपको कहता है कि आप अपने आप करिए. सेम क्वेश्चन फिगर्स चेंज कर देता है, तो उसी को हम कहते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स. देन इट इज मैकेनिज्म, मतलब तंत्र. लर्न रिस्पॉन्स हैव बिकम हैबिचुअल एंड द मूवमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विद सम कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी. जब किसी चीज को सीख कर हम कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं और प्रोफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं, मास्टरी कर लेते हैं उस चीज पर, तो उसको मैकेनिज्म कहते हैं. कीवर्ड्स हैं असेंबल्स, कंस्ट्रक्ट्स, डिस्प्लेस, एक्सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग अ कार. जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम आराम से उसको लेकर रोड पे निकल जाते हैं. देन कम्स प्रोफिशिएंसी. Proficiency is indicated by a quick, accurate, and highly coordinated performance, requiring a minimum of energy. This category includes performing without hesitation and automatic performance. Overt response में और mechanism में बहुत हल्का सा difference होता है. Mechanism में हम व्यक्ति confidence और efficiency से थोड़ा सा कम काम करता है, और overt response में थोड़ा hesitation से करता है. इसमें कीवर्ड्स हैं बिल्ड्स, कैलिब्रेट्स, कंस्ट्रक्ट्स, डिसमेंटल्स. एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई व्यक्ति पियानो बजाता है या कोई भी फॉर दैट मैटर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो वो बहुत स्मूथली बजाता है. उसके लिए उसको बहुत ज्यादा उसी वक्त सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा नहीं सोचता है, तो इसीलिए इसको प्रोफिशिएंसी कहते हैं. द कैटेगरी इज एडाप्टेशन, यानी अनुकूलन. When skills are well developed and the individual can modify movement patterns to fit special requirements. Keywords are changes, adapt, rearrange, revise. इसमें व्यक्ति इतना ज्यादा लर्न कर लेता है किसी भी चीज को कि उसकी और भी यूजेस को वो जान लेता है. किसी एक मशीन को का जिस भी पर्पज से उसको यूज किया जाता है, उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकता है. इसका एक बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं. डस्टर जिससे आप अपना ब्लैक बोर्ड इरेज करते हो, उसको अगर वो हथौड़ी की तरह कील को ठोकने के काम में लेकर आ रहा है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है इसका. साइकोमोटर डोमेन की लास्ट कैटेगरी आती है ओरिजिनेशन, यानी व्युत्पत्ति. Learning outcomes emphasizes creativity based upon highly developed skill. बहुत ही आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, और जब आप कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर देते हैं, तो वो ओरिजिनेशन कहलाता है. और इसके कीवर्ड्स हैं अरेंजेस, कंस्ट्रक्ट्स, क्रिएट्स, डिजाइन्स. जब कोई व्यक्ति अपनी कोई नई थ्योरी निकाल दे, कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दे, कोई जिम्नास्टिक रूटीन बना दे, कोई डाइट चार्ट बना दे जो दूसरों से थोड़ा अलग हो, तो उसको ओरिजिनेशन यानी व्युत्पत्ति कहते हैं. ये हुआ साइकोमोटर. अब हम आते हैं अफेक्टिव डोमेन पे, यानी भावात्मक डोमेन. Affective domain incorporates awareness of feelings generated to phenomena as the less value judgments about phenomena. ये हमारे हृदय से संबंधित है. इसके अंडर आता है receiving, responding, valuing, organization and characterization. Let us now know it in detail. The first one is receiving, यानी willingness to hear.
जब कोई व्यक्ति हृदय से रेडी होता है सुनने के लिए, क्योंकि लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है कि आपका अटेंशन हो, आप सुने, रिसीव करने के लिए आप तैयार हो। कीवर्ड्स आर एक्नॉलेज, आस्क, अटेंटिव, कर्टियस, ड्यूटीफुल। एग्जाम्पल में किसी को हम कुछ सिखा रहे हैं तो जो सिखा रहा होता है उसकी तरफ सीखने वाले की जो रिस्पेक्ट होती है उसी को कहते हैं रिसीविंग। फिर आता है रिस्पॉन्ड, अटेंड एंड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर फिनोमिना। रिसीव तो कर लिया हमने, अब जो हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसी को रिस्पॉन्ड कहते हैं। जैसे जब आप कुछ समझने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में 1000 सवाल आते हैं। जब वो सवाल आप अपने सिखाने वाले से पूछते हो, क्वेश्चंस पुट अप करते हो, तो उसी को कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। कीवर्ड्स हैं आंसर्स, असिस्ट, एड्स, कंपाइल्स, कंफर्म्स, डिस्कसेस। जैसे एग्जाम्पल में क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देना, डिस्कशन करना, क्वेश्चंस पूछना। इसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू, the worth of or value of a person attached to a particular object or phenomena or behavior. These values are expressed in the learner's overt behavior and or often identifiable. यानी आपने जो सीखा, जो सीखने की कोशिश की, जो आपको सिखाया गया, उसकी आप कितनी वैल्यू कर रहे हैं वह आपके व्यवहार से पता चल जाएगा। आप उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वही होता है वैल्यूइंग। आप जैसे ये वाला आपने वीडियो देखा, अगर आप इसको किसी और को पास ऑन करते हैं, बताते हैं कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, तो इसका मतलब आपने इस वीडियो की वैल्यू करी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स organizes values into priorities by contrasting different values, resolving conflicts between them and creating unique value system. जब हम डिफरेंट वैल्यूज के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके एक अपना नया वैल्यू सिस्टम बनाते हैं तो उसी को ये कहते हैं। कीवर्ड्स आर अरेंजेस, कंबाइन, कंपेयर, डिफेंस, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल के तौर पर व्यक्ति प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करता है अपनी लाइफ में हार्मनी लेकर आता है, अपने इंटरेस्ट, बिलीव्स, एबिलिटीज को प्रॉपरली यूज करता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली और खुद की प्रायोरिटीज और नीड्स को जानता है और पूरा करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टराइजेशन। इट हैज अ वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल्स द बिहेवियर। व्यक्तिगत बिहेवियर को कंट्रोल करता है क्योंकि उसने वैल्यू सिस्टम को अपने व्यवहार में पूरी तरीके से समाहित कर लिया है। कीवर्ड्स हैं एक्ट्स, डिस्क्राइब्स, displays, influences, listen, modifies, performs. He displays a professional commitment to ethical practice on daily basis. दैनिक जीवन में अपने वैल्यूज को उतार लेता है और किसी भी व्यक्ति को उसकी एबिलिटीज की वजह से जानता है, उसकी वैल्यू सिस्टम की वजह से जानता है, ना कि इसलिए कि वो व्यक्ति कैसा दिखता है। तो ये थे लर्निंग के 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव। So this was all for today's video, students. Let us sum up. We have learnt about the meaning or concept of learning. Let's revise it. Learning means change in behavior that occurs as a result of experience. Regarding nature of learning, learning is a process. It is universal, it is continuous, purposeful, it is multidimensional, it is transferable. We have also known about the essentials of learning. Learning requires a motive, a goal, and there are certain barriers also for the learning. We have learned in detail the domains of learning. There are 3 domains of learning: cognitive, that is intellect; psychomotor, which is based on performance; and affective, attitude. I sincerely hope, students, that this video might have made you understand the meaning, concept, process and domains of learning, and you might have come a step closer to know all about learning. Thank you and all the best for your future.